So the subject name is analysis and design of the algorithm. So today we will just introduce what is basically the ADA, the subject name, why we learn the ADA subject. Then introduction, after that algorithm, what do you mean by the algorithm? And what are the criteria used for design and analysis of the algorithm? And lastly, we discuss some notation which will be used in our syllabus. So, briefly discuss about the notation. So, this is the agenda of today's class. Now, the introduction of design and analysis of the algorithm. So, I think सभी लोग प्रोग्रामिंग कर चुके हैं. In first semester, you have in second semester, I think some computer programming is there, and the objective of as a software engineer, because you are the computer science student, so you will become a software engineer. So whatever the real time problem is there, you have to solve the problem by your computer knowledge. This is the main objective of the BTech CSE student. So first we will discuss what is the problem. कुछ प्रोग्राम हमने छोटे बनाए भी हैं. आगे in coming semester we will solve the real life large problem, या अगर हम कोई प्रोजेक्ट भी बनाएंगे. So first we will define the problem, and after that how we can solve the problem. मतलब पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमें क्या करना है, एंड हाउ वी कैन सॉल्व, दैट इज द लॉजिक ऑफ डिजाइन द लॉजिक. Then verification part means whether your logic is okay or not, means output. Suppose अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि एक दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम है, सो अवर program return a correct output addition of two numbers or not. Suppose if we pass 3 plus 2, अगर हम 3 और 2 को पास करते हैं तो 3 और 2 को हम ऐड करें तो 3 plus 2 कितना होना चाहिए 5. तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो लॉजिक है, क्या वो भी 5 देता है या नहीं. ऐसा तो है नहीं कि वो 1 दे रहा है या 6 दे रहा है. तो आफ्टर दैट वी वेरीफाई, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स आपने जो कॉपी में लॉजिक लिखा, जो सी का प्रोग्राम लिखा, या जो भी लैंग्वेज आप पढ़ चुके हैं पाइथन सी, आप उसको सिस्टम पे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज द वेरी सिंपल टर्म्स, एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज प्रोग्राम. तो यहां तक का हम सारा काम करके आ चुके हैं. सो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या किसी एक प्रॉब्लम के लिए एक ही लॉजिक हो सकता है, या एक से ज्यादा लॉजिक या एक से ज्यादा मेथड भी हो सकती है? कैन वी सॉल्व वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स और नॉट? क्या हम किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या एक से ज्यादा डिफरेंट मेथड या लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं? The question is clear to all? Yes, sir. Yes, so there can be various method. Okay. So now, before implementation, ठीक है, अभी हमने उसका सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, बट वी हैव द डिफरेंट मेथड. सो वन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट एल्गोरिथम्स. ठीक है, एल्गोरिथम 1 या हम उसे मेथड बोलें, एल्गोरिथम 2 दैट इज अनदर मेथड. सो दैट इज द एनालिसिस पार्ट. मीन्स फर्स्ट वी डिजाइन एंड देन एनालाइज, कि अब हमारे पास में एक से ज्यादा चॉइस है. सो इफ वी हैव द मल्टीपल चॉइस, देन वी कैन एनालाइज. So why this subject name is design and analysis of the algorithm? So first you have to design the algorithm, and if we have the multiple algorithms, then you have to analyze कि कौन सी better है. So the main concerns of a software engineers are to ensure
सबसे पहले तो करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन, आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं या आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, इट शुड बी करेक्ट। आंसर सही मिलना चाहिए, भले ही आपकी एल्गोरिथम कितनी फास्ट हो, लेकिन अगर आंसर गलत देती है तो it is not good. So this is the first and mandatory conditions, the correctness of the solution. Before implementation आपको अपने प्रोग्राम को कॉपी में चेक करना है कि हमारी मेथड से जो आंसर आ रहा है, हम कोई एक सैंपल टेम्परेरी एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने 3 और 2 ले लिया और 3 और 2 को मैंने पास किया और मेरा आंसर 5 दे रहा है, मतलब सही है। तो दैट इज द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। Then, decomposition of a software application into small and clean units which can be maintained easily. आप C programming करके आ चुके हैं, that is modular concept. कि one big problem is divided into smaller components or we can say modules so that we can maintain easily. कि जैसे अगर हम कॉलेज में भी देखते हैं तो हर सेक्शंस बने हुए हैं, मॉड्यूल्स बने हैं, तो अगर इफ यू वांट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वहां पर भी अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे सो दैट मेंटेनेंस इजी हो जाए। कि एक मॉड्यूल आपका अकाउंट्स का है, एक मॉड्यूल आपका एग्जाम का है, एक मॉड्यूल आपका अटेंडेंस का है, सो दैट यू कैन इजी टू मेंटेन। नाउ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कि अगर आपने देखा कि सपोज वी हैव द 1000 स्टूडेंट्स और उनको हम मेंटेन कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, तो कई बार हमारी मेथड्स में कोई प्रॉब्लम है कि सर्चिंग हमारी स्लो हो रही है, सो कैन वी इम्प्रूव बाय अ न्यू टेक्निक, न्यू मेथड, सो दैट एक्सेसिंग इज फास्ट और यूजर को वेट कम से कम करना पड़े। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। So now we move to the algorithm concept. What is basically the algorithm? I think you have already learned in 12th standard also, because some uh, computer courses have this concept, और प्रोग्रामिंग भी आप कर चुके हैं इन सेकेंड सेमेस्टर, यू हैव डेवलप्ड द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एल्गोरिथम? So the word algorithm, or it is the Latin words algorithms, has been derived as a combination of word. One is algorithm, which is the Middle Age denoted art of the computing using Arabic numericals, and Greek words, that is numbers. So this is the just history ki how the word comes in the algebra. So Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, who is the 9th century, developed this name. So it is very simple. An algorithm is defined as a specific sequence of finite number of, ये एक एक वर्ड ध्यान रखना है, it is the specific word for a particular problem, sequence of finite number, ठीक है, number of set of the instructions, precise, that is unambiguous, there is no duplicacy, आप चाहें तो उसको स्टेप्स बोल सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, and that is carried out to solve a given problem. So suppose if we have the problem, so if we want to solve the particular problem, then write the finite number of unambiguous steps oblique instructions in a sequential manner, that is known as algorithm. In real life also we use the terms algorithm, कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो हम कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हम कॉपी में अगर लिख लेते हैं, दैट इज आल्सो एन एल्गोरिथम। एंड इफ यू वांट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन कंप्यूटर, देन हाउ टू टेक द इनपुट, हाउ प्रोसेस, एंड देन आउटपुट इज देयर, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज एल्गोरिथम। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्गोरिथम। अगर हम डेफिनेशंस को फिर से देखें, एक an algorithm is defined as a specific sequence of finite number of precise unambiguous steps oblique instructions carried out to solve a given problem. तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हम एल्गोरिथम की ये 5 प्रॉपर्टी देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें
फाइनाइटनेस की, ठीक है, दैट इज व्हाट फाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेप्स आर शुड बी फाइनाइट। इवन इन योर प्रोग्राम आप लूप भी पढ़ते हैं, एल्गोरिथम में भी आप लूप यूज करेंगे, बट एल्गोरिथम की जो स्टेप्स है भले उसके अंदर लूप भी होगा तो भी वो फाइनाइट ही रहेगी। एग्जीक्यूशन इज मे बी इनफाइनाइट और नंबर ऑफ टाइम्स, बट द राइटिंग इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फाइनाइट। देन डिफाइनाइटनेस मीन्स जो अभी हमने एम्बिगुअस लिखा कि अगर हमने आई की वैल्यू 1 लिखी है और एक और आई अंदर भी लिख रखा है, दैट इज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो दोनों में डिफरेंस है। वन इज इनिशियलाइजेशन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस और अनदर इज इंस्ट्रक्शन। या अगर हमने आई प्लस 1 एक बार और कहीं लिख रखा है तो ये हमने बाहर लिख रखा है और ये हमने लूप के अंदर लिख रखा है, तो एवरी इंस्ट्रक्शंस हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन, according to that the instruction is executed, so that is definiteness. Every algorithms required a input. Without input, या तो आप either you can generate by a computer randomly generations, or you can ask user to enter the input, and then whatever the input is there, so every algorithms have at least one output is there। आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसका एक आउटपुट देते हैं। And then effectiveness, your program, your algorithm should be effective, each and every steps must be effectiveness, so that this is the solution for a particular problem। So these are the steps of the, yeah, we can say property or characteristics of the algorithm। आप चाहें तो इसको एक बार और देख सकते हैं। One is finiteness, so an algorithm should end in a finite number of steps। finite steps में वो end होना चाहिए। Definiteness, every step of an algorithm should be clear and unambiguously defined। जैसा अभी हमने बताया, the input of an algorithm can either be given interactively by the user, या तो user enter करें या फिर internally generate हो। And then algorithm should have at least one output। And last, every step in the algorithm should be easy to understand and prove using paper and pencil। So these are the 5 properties of the algorithm। So now algorithm is clear। Now a problem can be solved in a number of way, and a number of algorithm can be designed for its solution, which in turn is converted into a program to run into a computer। एक ही प्रॉब्लम को हम अलग अलग एल्गोरिथम से बना सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज हाउ गुड एन एल्गोरिथम इज, क्योंकि जब आपके पास में एक ही चॉइस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस तो आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी चॉइस हमें लेनी चाहिए। सो सपोज जैसे अगर हम बात करें कि ये जो लाइन है, दैट लाइन इज बिग और स्मॉल, अभी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके सामने एक छोटी लाइन बना दूं तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी, या अगर बड़ी लाइन बना दूं तो ये छोटी हो जाएगी। तो इफ वी हैव द मल्टीपल चॉइसेस, देन वी कैन डिसाइड, वी कैन एनालाइज, वी कैन कंपेयर। हम कंपेयर कब करते हैं? जब हमारे पास में एक से ज्यादा चॉइस होती है। So that is how fast, how expensive to run, or how efficiently it is in use of the available resources। So now the life cycle of an algorithm is what? So first we design the technique। आप चाहें तो greedy, divide and conquer, dynamic, these are the number of techniques जो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजाइन टेक्निक्स होती हैं। And then write the implementation of the algorithm। एल्गोरिथम को हम लिखेंगे। Test the algorithm, and then if we have the multiple algorithms, then we can analyze the algorithm। So these are the simple life cycle of an algorithm। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल इज देयर।
algorithm to calculate factorial of given number. So every student know about what is factorial. जैसे अगर suppose 3 का factorial 6 होता है. Okay, so this is the problem. So what is the problem? We want to calculate the factorial of given number. कि user अगर हमको कोई number दे तो हमें उसका factorial निकालना है. ठीक है, this is what is the problem. Now how you can solve the problem? आप किस तरह सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल क्या होता है सबको क्लियर है? जैसे 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि अगर हमें लॉजिक पता होगा देन वी कैन इजी टू राइट इन अ कॉपी. हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल? वेरी सिंपल. मैथमेटिशियन, एज ए मैथमेटिशियन बताएं. देयर इज नो नीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कैसे उसका प्रोग्राम बनाएंगे, but how to calculate the factorial. There is some pattern is there, semi-form formula, तो हम उसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं. तो फैक्टोरियल कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल? सर मल्टीप्लाई करते सब 1 तक. जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 into 2 into 1. वेरी गुड. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n. ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है. तो 1 से n तक, या एक और रिकरेंस फॉर्मूला भी आ गया आपके यहाँ कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n(n-1). वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड. तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हमें ये लाइन पता है, जैसे जो लिखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, हमें सिर्फ इतना याद रखना है तो हम पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. 1 से लेकर n तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले हम एल्गोरिथम में लिखेंगे प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर. ठीक है. इनपुट लॉजिक जो अभी आपने बताया कि 3 into 2 into 1 हम करें, उससे हमें 6 मिलता है. 1 से लेकर n तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है हमें. तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि 1 to n है ना, प्रोडक्ट हमें करना है. ठीक है, इतना ही हमें पता है. इनपुट गिवन नंबर्स, यूजर हमें एक इनपुट देगा. आउटपुट हमें फैक्टोरियल ऑफ n देना है. देन एल्गोरिथम. तो यहाँ पर देखिए 1 से n एक साथ तो यानी कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से. तो हमें सिर्फ ये लाइन पता थी कि 1 to n प्रोडक्ट करना है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद 1. तो अवर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और स्टेप क्या होना चाहिए? इनिशियलाइज करना है. तो हमने फैक्ट नाम का एक वेरिएबल 1 करा और i की वैल्यू हमने 1 करी बिकॉज अवर लूप शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. कहाँ तक चलना है वो भी हमने लिख दिया. तो देयर इज अ लूप. तो 1 to n का मतलब लूप होता है. तो हमने एक वाइल, आप चाहे वाइल लूप लिखें, फॉर लूप लिखें, दिस इज योर चॉइस, बट लॉजिक इज सेम. सो लूप जरूर होना चाहिए. आप लूप वर्ड भी लिख देंगे तो भी चलेगा बिकॉज एल्गोरिथम इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. आपको अपने लॉजिक को एक्सप्लेन करना है इन सिंपल लैंग्वेज. जरूरी नहीं कि आप सी के सिंटेक्स ही लिखें. तो हमने वाइल लिखा, i लेस देन इक्वल्स टू n लिखा, कंडीशन एंड डू. ठीक है, जब सी में प्रोग्राम बनाएंगे तो अब हम ऐसे लिख देंगे कि वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n. यही होता है सिंटेक्स, बट अभी हमें सिंपल लिखना है. फिर मल्टीप्लाई करना है हमें फैक्टोरियल. तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट प्लस 1. तो पहले 1 into 1 होगा, दैट इज 1. i इज इंक्रीमेंट बाय 2 और देन i की वैल्यू जैसे 2 हो जाएगी तो 2 into 1 दैट इज 2. i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 into 2 दैट इज 6. तो i की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तब हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 6 और एंड ऑफ द लूप हो जाएगा. सो दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक टू राइट एन एल्गोरिथम व्हिच कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर्स. इसमें कहीं किसी को डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो? मैं एक एग्जांपल और बताऊं. मींस हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम, ये भी हमें आना चाहिए. क्लियर है? यस सर. ओके.
Another example is also there. So you just read the logic. So first is the problem. First you have to understand what is the problem. Okay. फिर हम उसकी एल्गोरिथम लिख सकते हैं. So algorithm to search x in list or array of number. हमारे पास में कोई एक लिस्ट दी हुई है या कोई एरे दिया हुआ है नंबर्स का, उसमें हमें किसी पर्टिकुलर नेम को सर्च करना है. जैसे आपकी अटेंडेंस की एक लिस्ट है, जरूरी नहीं प्रोग्राम, मेरे पास में एक हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट में एक लिस्ट दी हुई है, मुझे किसी स्टूडेंट को सर्च करना है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व. अ सिंपल लॉजिक इज देयर. कैसे हम सर्च करते हैं? सर इंडेक्सिंग से चेक करेंगे उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स. ठीक है. हाँ, जैसे अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर बाय नंबर हम इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करेंगे? सर फर्स्ट 0. नंबर से. हाँ, अगर प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं तो 0, नहीं तो फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर से. अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इसी एक्सप्लेनेशन, इसी लॉजिक से आपको एल्गोरिथम की सारी स्टेप मिलेगी. सो अ वेरी सिंपल सर्च इज वन बाय वन we can compare from each number from the list. ठीक है. यहाँ पर ये दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक. तो वन बाय वन का मतलब क्या होता है? एक एक करके. कहाँ से शुरू होगा? 1 से. कहाँ तक होगा? n से. तो जैसे अभी हमने पुराना एल्गोरिथम करा था, दिस इज जस्ट सेम. वहां पर हम प्रोडक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है. तो लूप चलेगा वही i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और हर स्टेप में हमको कंपेयर करना है. So this is what linear way या sequential way. So that method is also known as linear search or sequential search. देखें. So problem is what? Search an element x in the list or array. Logic, compare each element one by one. तो इनपुट में हमें एक एरे दिया रहेगा 1 से n तक. ठीक है. आप सी में जब प्रोग्राम बनाएंगे तब जरूर 0 to n-1 करें, बट एल्गोरिथम में आप फ्री है, आप 1 to n लिख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस. और x जिसको आपको सर्च करना है. आउटपुट या तो जो लोकेशन में मिल जाएगा एलिमेंट, तो आपको उसकी लोकेशन बतानी है, और नहीं तो नहीं है तो 0 रिटर्न करना है. तो देखिए, दिस लॉजिक इज ऑल्सो सेम एज द प्रीवियस वन. स्टार्ट फ्रॉम दी 1. तो हमने इंडेक्सिंग जो है वो 1 से शुरू करा है. इंडेक्स इक्वल्स टू 1. कहाँ तक चलना है? n तक. और कब तक चलना है? जब तक कि वो एलिमेंट नहीं मिलता. उल्टा कर दिया मैंने. मिल जाएगा तो रुक जाएगा. तो एल ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स, मतलब नहीं मिलेगा जब तक हम बढ़ाते जाएंगे, इंडेक्स को +1 करते जाएंगे. जैसे ही मिल जाएगा स्टॉप. अगर हमें n से कम में मिल गया तो वेल एंड गुड, और ज्यादा मिल गया तो हम उसको 0 कर देंगे. तो यहाँ पर हमने, अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन n का मतलब है कि लूप आपका पूरा चल गया. मान लो सपोज यू हैव द 10 एलिमेंट, और 1 से लेकर 10 में नहीं मिला तो लूप की वैल्यू क्या हो जाती है? 11. सो दैट 11 इज ग्रेटर देन n, दैट मीन्स द नंबर इज नॉट इन द लिस्ट. तो आप उसको 0 कर देंगे, और नहीं तो इंडेक्स है ही जो रिटर्न कर देंगे. सो दिस इज ऑल्सो सिंपल वे टू राइट एन एल्गोरिथम. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay. So now, what are the criteria used for design and analysis of the algorithm? अब आपको 2 एग्जाम्पल से मैंने बताया, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से, कि हमने 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, एल्गोरिथम लिख लिए. अब जो एडा में सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है. सो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम के जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए. मतलब अगर आप एल्गोरिथम लिखते हैं, आपको एक प्रॉब्लम दी, आपने कॉपी में एल्गोरिथम लिखी, तो अब आप क्या करेंगे? व्हाट आर योर फर्स्ट स्टेप? अभी कॉपी पे काम हो रहा है, अभी देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन वर्ड, दिस इज अ थियोरिटिकल लॉजिकल वर्ड. तो आपने चाहे फैक्टोरियल या सर्चिंग का प्रोग्राम कॉपी में लिख लिया है,
ठीक है, आपको जो लॉजिक समझ में आया, हो सकता है कोई दूसरा लॉजिक आया तो आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? Verification हाउ? by taking any number example. Yes, this is called correctness. So this is the very first criteria, correctness. The algorithm should be correct and check it by taking a small example. आप कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हमने फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम बनाया है और अगर हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम में गलती से प्लस लिख गए, इनटू लिखना था, तो अब क्या होगा जब हम फैक्टोरियल 3 निकालेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 आना चाहिए, और हमारा प्रोग्राम 3 प्लस 2 प्लस 1 कर रहा है, तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, हमें एक और एग्जांपल ले लें, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 दे रहा है, जबकि हमें पता है कि फैक्टोरियल 4 जो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। तो ये ध्यान रखें, आपको 2-3 एग्जांपल लेके अपने लॉजिक को चेक करना है कि सही है कि नहीं। जैसे अगर हमें कोई नंबर है 4 6 8 10 12, मुझे सर्च करना है इसमें x की वैल्यू 8, तो मेरा लॉजिक सही है कि नहीं है। फिर मैं दूसरा नंबर दूं कि x की वैल्यू 18 विच इज नॉट इन द लिस्ट, वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि लिस्ट में नहीं है। सो दैट इज द करेक्टनेस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम, आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ के आ चुके हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज ट्रेसिंग, ट्रेस द प्रोग्राम। ठीक है, पेपर और पेन पेंसिल से हम करते हैं, या हम इसको बोलते हैं ड्राई एंड रन। हमने सिस्टम पे रन नहीं करा है, हमने अपने कॉपी पे रन कर लिया है और उसके थ्रू हम रन करते हैं। तो आप एक एक इटरेशन बाय इटरेशन लिख के कर सकते हैं कि किस तरह हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, पूरा एक एक। और अगर आप 2-3 एग्जाम्पल ऐसे कर लेंगे तो चाहे कितनी टफ से टफ एल्गोरिथम, क्या होता है हमें ये लगता है ना ये एल्गोरिथम रटना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी, नो। इफ यू run try and run test for at least 2 or 3 examples, then each and every steps आपको एक एक स्टेप्स क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, इसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर मैं पूरा इस तरह लिखूं, इटरेशन 1, पूरा एल्गोरिथम को यहाँ से स्टार्ट करूं। फॉर एग्जांपल 3, n की वैल्यू कितनी हो गई 3, फैक्ट की वैल्यू 1, बाय डिफॉल्ट फैक्ट की वैल्यू रहेगी 1, आई की वैल्यू भी 1। ये पहला इटरेशन है, पहले चेक होगा कि वाइल जो है आई की वैल्यू 1 क्या वो n की वैल्यू 3 से छोटा है, यस, तो मैं लूप के अंदर आ गया। फोर्थ स्टेप पे लिखा मैंने कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1। फिर आई की वैल्यू आई प्लस 1 करिए फिफ्थ स्टेप में, तो आई हो गया 2। सो आफ्टर दी 1 इटरेशन मेरे पास फैक्ट की वैल्यू 1 आ गई और आई की वैल्यू 2 आ गई है। अब मैं इटरेशन 2 चलाता हूं, इटरेशन 2, जब मेरे पास फैक्ट जो है वो तो 1 है और आई जो है वो 2 है। फिर लूप के अंदर आए, कंडीशन चेक होगी कि क्या ये i की वैल्यू जो 2 है वो n की वैल्यू जो 3 है उससे छोटी है या बराबर है, यस। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो गया, i की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। देन थर्ड इटरेशन, इटरेशन नंबर 3, अब मेरे पास फैक्ट की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है, अभी भी आई की वैल्यू 3। इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर जब आप ट्रेस करेंगे तो आपको एक एक चीज की यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू लिखना है, क्योंकि ये तीसरी बार और चलाना है। कई लोग होता है रट लेंगे तो हम भूल जाएंगे क्या है, लेकिन हमें 3 तक चलाना है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू 3 के बराबर है, तब तक तो हमें लूप
चलाना है। अब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्ट अब कितना हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6 और आई हो गया 4। तो जब 4 होगा तो फोर्थ इटरेशन नहीं चलेगा बिकॉज लूप इज टर्मिनेटेड, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू चलेगा और लास्ट में आपको आंसर 6 आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड करेक्टनेस। ये क्लियर है सभी को? आप कोई भी एल्गोरिथम है उसका करेक्टनेस करेंगे कॉपी में? यस सर। ओके। तो इसी तरह इस एग्जांपल को भी आपको दो एग्जांपल लेना है, एक ऐसा जो लिस्ट में एलिमेंट है और एक ऐसा जो लिस्ट में एलिमेंट नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लम हम आगे और डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक ब्रीफ हम ट्रेसिंग समझ सकते हैं क्या होती है। सो करेक्टनेस इज क्लियर। नाउ सेकेंड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो नंबर ऑफ इटरेशन आए हैं, ये कितने इटरेशन आए, किस नंबर, जैसे अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 इटरेशन, n की वैल्यू 4 है तो 4 इटरेशन, तो n की वैल्यू n है तो n इटरेशन, मतलब n नंबर ऑफ इटरेशन, n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। ठीक है, कितना काम कर रही है एल्गोरिथम। अगर मान लो मेरे पास में 10 एलिमेंट है और 10 एलिमेंट में मुझे x को सर्च करना है तो मैक्सिमम मुझे कितना लूप चलाना पड़ेगा, 10 तक, तो 10 हमारा इटरेशन हो जाएगा, इसीलिए उसको लीनियर बोलते। सो देयर अमाउंट ऑफ वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी एल्गोरिथम कितना काम कर रही है, कितने मल्टीप्लाई कर रही है, कितने कैलकुलेशंस कर रही है, वो हमें चेक करना रहता है। तो वी वांट टू मेजर द वर्क डन बाय द एल्गोरिथम व्हिच टेल अस समथिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द मेथड यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम। तो सिंपल क्राइटेरिया ये होता है कि सिंपल एल्गोरिथम में कंसिस्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड लूप, and the number of processes through the body of the loop is a fairly good indication of the work done by such algorithm। आपका लूप कितनी बार चल रहा है, आप उससे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना काम कर रहे हैं। या कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसी में कंपैरिजन हो रहा है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो इन मेनी केसेस to analyze an algorithm, we just count basic operations performed by the algorithm, because many algorithm exactly one of these operation is performed on each pass through the main loop of the algorithm। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि टू फाइंड x इन अ लिस्ट ऑफ नेम्स, अभी हमने देखा कि लिस्ट है उसमें x को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो क्या ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन। तो हमें सिर्फ कंपैरिजन पे ध्यान देना है। एक और प्रॉब्लम, अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कौन सा ऑपरेशन होगा, मैथ्स पढ़ा है हमने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन सा ऑपरेशन होता है, क्या कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, एनीवन? सर मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो देन मैट्रिक्स 2 का फर्स्ट कॉलम। क्या होगा उसमें? सर फर्स्ट एलिमेंट जो रो का है उसका कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सर। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे भी क्या? यस सर। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये हमारे मेन ऑपरेशंस हो गए। सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ नंबर, सॉर्ट का मतलब सबको पता है, अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, नंबर को अरेंज करना चाह रहे हैं, बिना कंपैरिजन के कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। तो कंपैरिजन और इंटरचेंज अगर हम देखें तो ये मेन ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म होंगे। सो वी ऑल्सो यूज द टर्म कॉम्प्लेक्सिटी, इसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस डन इंस्टेड ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया। आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है, तो ये इसके नेक्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।